کربلا کا واقعہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر زمین اور آسمان بھی غمگین ہو اٹھے۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی شہادت کے بعد آسمان سرخ ہو گیا۔ کئی دنوں تک لال آندھیاں چلتی رہیں اور ہر طرف خوف و وحشت کا ماحول چھایا رہا۔ اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون نظر آتا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام شہادت نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ پیارے دوستوں، کربلا کے میدان میں جب یزید کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کا پیغام بھیجا گیا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کسی ظالم اور ناحق حکومت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ اگر نواسائے رسول اس کی بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس وقت یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ فوج نے مشورہ کیا کہ 10 محرم آنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عباس، فوج کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کا نواسہ ان سے 1 رات کی مہلت چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ یزید کی فوج کے پاس پہنچے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا تو فوج کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخرکار انہوں نے 1 رات کی مہلت دینے کا فیصلہ کر لیا اور حملہ اگلے دن یعنی 10 محرم تک ٹال دیا گیا۔ یہ وہ رات تھی جسے عاشورہ کی رات کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں نے پوری رات عبادت، دعا اور ذکر الہی میں گزاری۔ سب کو معلوم تھا کہ اگلا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے قدموں میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ ہر ایک کے دل میں بس یہی جذبہ تھا کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دینی ہے۔ پھر رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کی صبح طلوع ہونے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹے اذان دو۔ جیسے ہی اذان کی صدائیں کربلا کی فضاؤں میں گونجی، اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اذان کے فوراً بعد سب نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اتنے میں یزید کی فوج نے حملہ شروع کر دیا اور پھر ایک ایک کر کے اہل بیت اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام وفادار ساتھی شہید ہوتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خاندان رسول کے سبھی افراد شہید ہو گئے، اور پھر جب کوئی باقی نہ رہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سنتے ہی خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف سے رونے اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ اب نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوسرے خیمے میں تشریف لے گئے، جہاں آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے زین العابدین، اٹھو اور اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی طرف نظر اٹھائی۔ دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چھلنی تھا اور خون سے تر تھا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بیٹا، ان ظالموں نے ہمارے اہل بیت اور خاندان رسول کے تمام افراد کو شہید کر دیا ہے۔ بیٹا، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لختے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سہارے سے اٹھ بیٹھے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی میدان جنگ میں جا کر دین اسلام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
फरमाने लगे, ए जैनुल आबिदीन, तुम खानदाने अहले बैत के चश्मो चिराग हो। तुम्हें जिंदा रहना है और लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाना है। तुम्हें यजीद के दरबार में खुतबा देना है और हक की आवाज बुलंद करनी है। ये सुनकर हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु झारो कतार रोने लगे। फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बीमार बेटे को अलविदा कहा और खेमे से निकलकर मैदान करबला की तरफ रवाना हो गए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जैसे ही मैदान करबला में तशरीफ लाए, आपने यजीद की फौज को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूं। मैं वही हुसैन हूं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर सवार किया करते थे। मैं वही हूं जिसे मेरे नाना अपने सीने से लगाकर सुलाया करते थे। मैं वही हूं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। मैं वही हूं कि जब नमाज के दौरान अपने नाना की पुश्त मुबारक पर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराम में अपना सजदा लंबा कर दिया करते थे ताकि मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचे। ऐ लोगों, आज तुमने हुसैन को रुलाया है। तुमने अपने हाथों से जन्नत के बदले दोजख का सौदा कर लिया है। बताओ, मेरा क्या गुनाह है? क्या मैंने कोई नमाज कज़ा की है या मैंने किसी पर कोई जुल्म किया है? ये सुनकर यजीद की फौज में से कुछ लोग कहने लगे, हम तुम्हें इसलिए शहीद नहीं कर रहे कि तुम्हारा कोई कसूर है, बल्कि तुम्हें इसलिए शहीद कर रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ऐ लोगों, क्या तुम उसी अली का बदला उनकी औलाद से ले रहे हो जिन्होंने हर मोड़ पर इस्लाम की हिफाजत की? बस इतने में शिमर चिल्लाकर कहने लगा, हुसैन की बातें मत सुनो, उस पर हमला कर दो। इसके बाद जंग शुरू हो गई। तारीख गवाह है कि करबला की सरजमी पर ऐसा मंजर ना इससे पहले कभी देखा गया था और ना बाद में देखने को मिला। एक तरफ हजारों का लश्कर था और दूसरी तरफ 3 दिन के प्यासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, जो अकेले ही यजीदी फौज का डटकर मुकाबला कर रहे थे। हजारों यजीदी एक एक करके हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार से मार गिराए जा रहे थे। 3 दिन की प्यास, अपनों की जुदाई और जिस्म पर लगे जख्म भी हुसैन के हौसले को कम न कर सके। आप मैदान करबला में शेर की तरह लड़ रहे थे। जिधर रुक करते दुश्मन के सफों में खलबली मच जाती। आपकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी और दुश्मन आपके सामने ठहरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तारीख ने तहरीर कर दिया है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी और जुर्रत देखकर यजीदी फौज के कदम उखड़ने लगे। कई सिपाही मैदान छोड़कर पीछे हटने लगे और कुछ भागते हुए दूर निकल गए। ये देखकर उमर बिन सद ने शिमर से कहा, तुम अब तक खामोश क्यों हो? हमला क्यों नहीं करते? तो शिमर बोला, अगर मैं उनके सामने गया तो मारा जाऊंगा। जब लोग हुसैन के साथियों और उनके जवान बेटों का मुकाबला ना कर सके तो खुद हुसैन का क्या मुकाबला करेंगे? उनकी रगों में अली का खून दौड़ता है और उन्हें नबी की तरबियत हासिल है। जब दुश्मन आमने सामने की लड़ाई में कामयाब ना हो सके तो उन्होंने एक नई चाल चली और हुक्म दिया गया, जाओ खेमों को आग लगा दो। इसके बाद शिमर और उसके साथियों ने अहले बैत के खेमों में आग लगा दी। उधर उमर बिन साद ने हुक्म दिया, हुरमला, हुसैन पर तीर चलाओ। बस फिर क्या था, हजारों की फौज ने चारों तरफ से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पर तीरों की बौछार शुरू कर दी और अहले बैत के खेमों को आग की लपटों के हवाले कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कभी फौज की तरफ जाते और कभी खेमों की तरफ रुख करते। एक तरफ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे और दूसरी तरफ अहले बैत के खेमों की फिक्र भी कर रहे थे। इतने में उमर बिन साद चिल्लाकर कहने लगा, जिस जिस के पास जो कुछ है उसी से हुसैन पर हमला करो। बस फिर क्या था, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार से वार किया, कोई तीर चला रहा था तो कोई पत्थर बरसा रहा था। यहां तक कि जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की तपती हुई मिट्टी उठाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ फेंक रहा था। इसी दौरान एक आवाज बुलंद हुई, हुसैन कामयाब हो गया, हुसैन कामयाब हो गया। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने यह सदा सुनी, आपने अपना सर मुबारक झुका लिया और अपने रब का शुक्र अदा करने लगे। उधर दुश्मनों के तीर, नेज़े, भाले, पत्थर और करबला की गर्म मिट्टी लगातार आपके जिस्म मुबारक पर लगती रही, लेकिन आप अपने रब की याद में मशगूल रहे।
जख्मों की शिद्दत और लगातार होने वाले हमलों के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े से जमीन पर तशरीफ ले आए। आपका जिस्म मुबारक जख्मों से चूर था, लेकिन आपकी जुबान पर अब भी अल्लाह का जिक्र जारी था। ये देखकर उमर बिन साद चिल्लाकर कहने लगा, हुसैन जमीन पर गिर गए हैं, जाओ हुसैन का सिर तन से जुदा कर दो ताकि हम ये खबर यजीद तक पहुंचा सकें और उसका इनाम हासिल कर सकें। मगर जो भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के करीब जाने की कोशिश करता, उसका दिल कांप उठता। वो आगे बढ़ता, फिर पीछे हट जाता। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि नबी के नवासे के करीब जाए। इतने में शिमर आगे बढ़ा और कहने लगा, ये काम मुझसे ही होगा, मुझे खंजर दो। फिर वो खंजर लेकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के करीब पहुंचा। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने रब की बारगाह में झुके हुए थे और अल्लाह को याद कर रहे थे। शिमर ने आगे बढ़कर खंजर को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की गर्दन मुबारक पर रखा और अपने नापाक इरादे को अंजाम देने की कोशिश करने लगा। जब शिमर ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसने सोचा, देखूं तो सही हुसैन क्या कह रहे हैं। वो धीरे धीरे करीब गया और सुनने की कोशिश करने लगा कि नबी के नवासे की जुबान पर आखिरी वक्त में क्या अल्फाज हैं। तब उसने सुना कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। मैंने तेरे दीन की खातिर अपना सब कुछ फिदा कर दिया। ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना कि तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन की हिफाजत के लिए अपना घर, अपना खानदान और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। जख्मों से चूर होने के बावजूद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की जुबान पर न शिकवा था न शिकायत थी। आप लगातार अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे, उसकी हम्दो सना बयान कर रहे थे और उसी की रजा पर राजी थे। इतने में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी आंखों खोली और शिमर से फरमाया, ऐ बदबख्त, क्या तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? इस पर शिमर ने जवाब दिया, हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हो, अली के बेटे हो और फातिमा के लाल हो। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब तू ये सब जानता है तो फिर भी मेरा कत्ल करना चाहता है? तो शिम्र बोला, तुम्हें कत्ल करके मुझे इनाम मिलेगा, सोना मिलेगा और हुकूमत के करीब होने का मौका मिलेगा। इस पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुनिया की इस चंद रोजा दौलत के लिए अपनी आखिर तक बर्बाद मत कर। क्या तुझे अपनी निजात और जन्नत की फिक्र नहीं? लेकिन शिम्र पर इन बातों का कोई असर ना हुआ। वो अपनी जिद और दुश्मनी में डूबा रहा, जबकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु आखिरी लम्हों तक सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की रजा पर कायम रहे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु आखिरी लम्हों तक अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु शहादत के बुलंद मुकाम पर फाइज हो गए। बस हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत होना था कि यजीदी फौज में खुशी का माहौल बर्पा हो गया। कुछ लोग झूमने लगे, कुछ अपनी कामयाबी का जश्न मनाने लगे। इतने में उमर बिन साद चिल्लाकर कहने लगा, लूट लो अहले बैत के खेमों को, लूट लो। बस फिर क्या था, यजीदी फौज खेमों की तरफ टूट पड़ी और एक एक चीज को लूटना शुरू कर दिया। फिर उमर बिन साद कहने लगा, यजीद का हुक्म है कि तमाम शहीदों के सिर मेरे पास लाए जाएं और उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए जाएं, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि जो यजीद के सामने खड़ा होगा उसका अंजाम क्या होगा। इसके बाद यजीदी फौज ने शहीदों के जिस्मों के साथ भी जुल्म किया और उन पर घोड़े दौड़ाकर उन्हें पामाल कर दिया। उनका मकसद लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना था, ताकि कोई हक और सच्चाई की खातिर यजीद के मुकाबले में खड़ा होने की हिम्मत ना करे। एक तरफ यजीदी फौज अपनी झूठी फतह पर जश्न मना रही थी, जबकि दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, बहनें और अहले बैत अश्कबार थे। खेमों से रोने और सिसकियों की आवाजें बुलंद हो रही थीं, लेकिन यजीद और उसके साथी ये नहीं जानते थे कि उन्होंने हुसैन को नहीं हराया, बल्कि हुसैन ने अपनी शहादत से हमेशा के लिए हक को जिंदा कर दिया। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके वफादार साथियों ने सब्र, वफा, बहादुरी और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की
जिसकी नजीर पूरी तारीख में मिलना मुश्किल है। 3 दिन की प्यास, भूख, अपने अजीजों की जुदाई और हजारों दुश्मनों के घेराव के बावजूद ना हजरत इमाम हुसैन पीछे हटे और ना उनके साथियों ने हक का दामन छोड़ा। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि सिर कटाया जा सकता है, लेकिन जुल्म और बातिल के सामने सिर झुकाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है तो दुनिया भर के मुसलमान करबला के शहीदों को याद करके गमगीन हो जाते हैं। लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, दिल भर आते हैं और जुबान से बेख्तियार निकल पड़ता है। सलाम हो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पर, सलाम हो करबला के तमाम शहीदों पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन हक और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।